Hello everyone and good morning. In the previous lecture of chemical bonding, lecture number 6, we have discussed about the interacting forces which are present in a covalent bond. At the same time, we have seen that how the formation of H2 molecule takes place, as well as different types of overlap. You know that now SS overlap, PP overlap, as well as SP overlap. Okay. At the same time, you know that in the previous lecture we have discussed about why there was a need for the concept of, you know, that hybridization it was introduced. तो अभी हम यहाँ पे जानेंगे actually what is the meaning of the term hybridization. You know that ये word आपने सुना होगा, what is meant by hybrid. तो ये जो है concept यहाँ पे, this concept is totally new for you. That's why to learn this concept properly, you have to focus right now. Let's see now the definition of hybridization. First of all, I will write the definition here. It is the process of mixing and recasting of atomic orbitals of same atom having nearly the same energy to form here hybrid orbitals of equivalent energy maximum symmetry and specific orientation, or I will write here definite orientation and definite orientation in space, and this is known as, you know, that the term hybridization. The process of mixing and recasting. Mixing means they will mix together. For example, S orbital can mix with a P orbital, and now that's why there is a mixing. And recast means once they get mixed together, they will again recast. I am talking about the atomic orbitals of the same atom. Remember, this will take place for the same atom. हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका. अभी यहाँ पे जो भी होगा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई है, दैट ऑर्बिटल इट मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी. आई मीन टू से वन थिंग हियर. देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, तो अगर यहाँ पे होना है ये प्रोसेस, तो ऐसे ही यहाँ पे आएंगे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो. I mean they will, or they have nearly the same energy.
तो 2s and 2p they are having nearly the same energy, that's why they will undergo this process. या फिर 3s with 3p, लेकिन 2s का या फिर 2p का 3s के साथ में नहीं हो सकता ये प्रोसेस, क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है. You know that energy we can calculate by using the n plus l rule. Yes, तो n plus l rule जो होता है, and you know that also what is meant by above principle. तो इस हिसाब से जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इन्हीं के बीच ये होता है ओवरलैप. So here, that's why I have written here, having nearly the same energy to form hybrid orbitals of equivalent energy. देखिए जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पे होंगे पार्टिसिपेट, उतने ही नंबर ऑफ फॉर्म होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. आगे लिखा है मैंने ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. वंस दे विल फॉर्म दिस ऑर्बिटल्स, देयर एनर्जी इज नियरली इक्विवेलेंट. देन मैक्सिमम सिमेट्री, ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद ये अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि इनमें मैक्सिमम सिमेट्री हो और वो ज्यादा स्टेबल हो सके. सो हियर आई विल राइट हियर मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन द स्पेस. इनके बीच में ऐसा होगा ओरिएंटेशन ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स बने, दैट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव द स्टेबिलिटी. दैट्स व्हाई दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स. अभी ये डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगा प्रॉपरली जब हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस स्टूडेंट्स, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. एक्चुअली अभी हमारे जो है सिलेबस में देयर इज sp3, I will write 3 here, sp3, then sp2 and sp hybridization. Now see what is the definition of sp3 hybridization here. It's a process of mixing and recasting of one s orbital and 3p orbitals. देखिए जब भी कभी यहाँ पे मिक्सिंग होगा एक s ऑर्बिटल का और 3p ऑर्बिटल्स का, तो इसको हम लोग बोलेंगे यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो यहाँ पे जो फॉर्म होंगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जब हम लिखेंगे sp2 के बारे में, तो यहाँ पे आएगा 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे फिर देखिए एक और ये 3 मिला के 4 फॉर्म हो गए थे. यहाँ पे 1 और 2 मिला के फॉर्म होंगे 3 और इनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एट द सेम टाइम वी कैन राइट हियर 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल. They will form together, yes, 2 sp hybrid orbitals. तीनों का अगर आप देखोगे डेफिनेशन तो नियरली सेम ही आएगा. नाउ सी हाउ टू राइट देयर डेफिनेशंस. It's a process of mixing and recasting of 1s orbital and 3p orbitals having nearly the same energy to form 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in the space. That is known as sp3 hybridization. At the same time, for sp2 we can write it's a process of mixing and recasting of 1s orbital and 2p orbitals having nearly the same energy to form 3 sp2 hybrid orbitals
Yes, with the same line you have to write here, with the equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in the space. For sp we have to write here, it's a process of mixing and recasting of one s orbital and one p orbital having, yes, nearly the same energy to form two sp hybrid orbitals is known as sp hybridization. So all these definitions, they are quite similar, not a much difference between them. So in this way we have to understand this concept. ठीक है, अभी इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे हमें देखने हैं. व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट you just write down all these things properly. Now, after this, before to start with the how the formation of the molecule takes place, हम देखते हैं some of the salient features of the process that is known as a hybridization. The first one is here. Atomic orbitals of the same atom can take part in the process of hybridization. For example, इन केस ऑफ अगर हम लेते हैं मीथेन, तो इन केस ऑफ मीथेन कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड ओनली दैट कार्बन एटम इट विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब सब उस सिर्फ कार्बन के एटम जो है, आई मीन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे पार्ट लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, मतलब यहाँ पे एच के एटम्स, एच के ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे. So this is point number one. We have to say atomic orbitals of the same atom can take part in the process of hybridization. Then the next point is here. Atomic orbitals of the comparable energies only can undergo hybridization. Comparable energy का मतलब समझते हैं अभी आप, मतलब they are having the same energy, means nearly the same energy. For example, जैसे मैंने आपको बोला था 2s and 2p, they are having the same energy. 3s and 3p, they are having nearly the same energy. But 3s and 4s, they are having large difference in their energy. या फिर हम बात करते हैं कि 2s and 3p, they are also having the large difference. तो ये जो रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बीच में ये प्रोसेस होना है, they should have comparable energies. Then the next point, the number of hybrid orbitals formed is equal to number of orbitals taking part in the process of hybridization. देखिए ना, अभी हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स. sp3 क्या होता है? sp3 में क्या होता है कि there is the presence of only one s orbital and 3 p orbitals. एक s वाला और 3 p वाले. यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक उसी तरीके से अगर एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल्स है, तो इनसे बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और अगर एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p अगर है, तो इन दोनों में फॉर्म होगा, मतलब तो फॉर्म होंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. आई मीन the number of atomic orbitals that will participate in the process, it is the same, that is equal to the number of hybrid orbitals formed. Then all hybrid orbitals are identical with respect to the energy and the shape. आपको पता है s orbital is spherical in shape. जहां तक सवाल है p orbital का, तो they have dumbbell shape. लेकिन जब s ऑर्बिटल और p के बीच में यहाँ पे होता है ओवरलैप, आई मीन ये जो हो जाएगा प्रोसेस,
और जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं sp3 की, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा s और तीन आएंगे p, तो इनसे फॉर्म हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो जो है वो फॉर्म होंगे चार, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है और तीन के कौन से है, p है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म होंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनका क्या होगा, दे आर हैविंग द सेम एनर्जी एंड द सेम शेप। ऑल दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, और उनका जो शेप है ये भी यहाँ पे सेम होगा। पॉइंट नंबर 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन द स्पेस to minimize the force of repulsion between their electrons and to have maximum symmetry। इसमें हमारी बात हुई है कि जैसे ही ये यहाँ पे चार बन जाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि उनमें कम से कम रिपल्शन हो और वो जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल बने। पॉइंट नंबर 6, द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म by the hybrid orbitals are stronger than those by the pure atomic orbitals। जहां पे सवाल है, आपको पता है क्या होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, वी हैव सीन ss ओवरलैप, pp ओवरलैप। तो ये यहाँ पे क्या था, दे वेर प्योर, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनमें क्या होता है, इनसे जो भी बॉन्ड बनेगा वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स। अभी हम सीधा एक काम करेंगे, हम मीथेन मॉलिक्यूल का देखते हैं फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में। Now, students, let's see here the formation of methane molecule on the basis of the process that is known as a hybridization। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको आएगा तो कम से कम 4 मार्क्स के लिए आएगा। So this question will be important for 4 marks and the question will be asked in the theory paper like explain the formation of methane molecule on the basis of हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी, इसमें क्या क्या होंगे स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे। साइमल्टेनियसली आई विल आल्सो राइट ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है मीथेन मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मूला है CH4। सो इन मीथेन मॉलिक्यूल there is presence of one carbon atom and 4 hydrogen atoms। Carbon atom is present at the सेंटर। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप होगा, ये स्टेप होता है यस फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। देखिए ये है डिफरेंट स्टेप्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल प्रॉपरली यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द एग्जांपल। सो आई मीन सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। याद रखिएगा एक बात, व्हेन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आई मीन दैट एटम, इफ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, then this step will take place। So I will write first of all here, if देखिए अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो पहले हम एक काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन।
कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. सो हियर आई विल लाइक 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz. कार्बन के 6 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, 5 और ये 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो हियर ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट में आपको देखने का है. देखिए यहाँ पे तो 1s की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आएगा 1 बॉक्स, 2s के लिए भी आएगा 1 बॉक्स, एंड फॉर 2p वी हैव टू ड्रॉ हियर 3 बॉक्सेस. तो 1s2 है मतलब यहाँ पे 1 एंड 2, 2s2 में यहाँ पे फिर 1 एंड 2, 2px में है 1, 2py में है 1. ये है मैंने लिखा ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नॉर्मल स्टेट में जब एटम या फिर वो इलेक्ट्रॉन उसने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती है, वो अपने नॉर्मल स्टेट में होता है, तो ऐसे में ये आएगा कार्बन का ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी देखिए valency of carbon is 4 because in the first shell there is the presence of 2 electrons, in the second shell there are 4 electrons. Valency of carbon is 4, but you can see there is presence of only 2 unpaired electrons. ऐसा जब भी होता है तभी यहाँ पे ये स्टेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं excited state. So as per the rule of VBT, postulates of VBT, if you read properly, इसमें ये दिया है. So here excited state में देखिए यहाँ पे 1s का तो कोई पार्ट नहीं है क्योंकि ये अंदर वाला शेल होता है, तो मैं इसको रखता हूँ साइड में. ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ. ये आप देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है. देखिए यहाँ पे वैलेंसी कितना है कार्बन का, 4 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन कैसे है, अनपेड है. तो ऐसे में ये जो है 2s वाला एक्चुअली इस यहाँ पे ये है 1s2, ये है 2s2, ये है 2px1, ये है 2py1 और ये है 2pz0. यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2px, यहाँ पे 2py, यहाँ पे 2pz. देखिए अभी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 2 है, हमें 4 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में से जंप करेगा और वो सीधा आएगा 2pz में. सो हियर दैट इलेक्ट्रॉन it will jump, it will uncouple here, it will jump in the vacant 2pz orbital. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप किया है और वो अभी कहाँ पे आया है, वो आया है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में. अभी देखिए वैलेंसी ऑफ कार्बन इज yes 4 and there is also presence of 4 unpaired electrons. So इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. तो हमें लिखना पड़ेगा इसके बारे में. सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 but number of unpaired electrons are 2. Hence, one of the electron from 2s will go to excited state and jump in vacant 2pz orbital. ऐसा हमें तभी करना है जब वैलेंसी और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल ना हो. तो ये होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट.
अगर सोचिए वैलेंसी और ये इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो यहाँ पे इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज हियर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1s का कोई पार्ट नहीं होता है, 2s और 2p का यहाँ पे होगा पार्ट। ठीक है, तो ये 2s ऑर्बिटल जो है 2s होता है और ये बाकी ये 2px 2py और 2pz ये तीनों एक s 3p ये मिक्सअप हो जाएंगे। दे विल मिक्सअप टुगेदर एंड दे विल रिकास्ट। ये चारों मिक्स हो जाएंगे और अपने आप से ये 4 sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सो हियर वन 2s orbital and 3 2p orbitals will mix up together and recast to form 4 sp3 hybrid orbitals। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो स्टेप फिर हमारा। आई विल राइट हियर हाइब्रिडाइज स्टेट। वंस अगेन यहाँ पे जो 1s2 है इसका कोई पार्ट नहीं है, जो भी अभी यहाँ पे 2s है। देखिए ये 2s एक 2s और ये यहाँ पे 2p ये सब मिक्स हो जाएंगे और फिर इनसे बनेंगे 1 2 3 4। अभी ये जो 4 हमने यहाँ पे लिखे हैं मैं इन्हें नाम दूंगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये 4 बन गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये होता है स्टेप नंबर 2 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग बोलते हैं इसको। देन द थर्ड स्टेप यू हैव टू राइट। अभी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा ये होगा ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो आई विल राइट हियर स्टेप नंबर 3। orientation of hybrid orbitals। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये कुछ इस तरीके से ओरिएंट होंगे ताकि इन चारों में ज्यादा सिमेट्री बने और ये ज्यादा स्टेबल हो और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में कम से कम रिपल्शन हो। So I have to write here these 4 sp3 hybrid orbitals they get orient in such a way that there should be maximum symmetry। Yes, then definite orientation in the space। So these 4 hybrid orbitals will orient in such a way that there should be minimum repulsion and maximum स्टेबिलिटी। तो ये कुछ अपने आप को कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे
ताकि इनमें कम से कम रिपल्शन हो और ज्यादा रहे इनके बीच में सिमेट्री, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे जगह मतलब कैमरा में एक साथ आगे नहीं, अदरवाइज आई विल लव दिस एंड आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेप देयर। yes there is a space available so I can write here। देखिए अभी ये जो है ये 4 ऑर्बिटल अभी अपने आप को एडजस्ट करेंगे जैसे कि मैंने बोला। तो मैं अभी दिखाता हूं यहाँ पे आपको। देखिए ये है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी है sp3 हाइब्रिड। देखिए इन्होंने अपने आप को अभी इस तरीके से एडजस्ट किया। ठीक है, नाउ देन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट हियर, और ये है यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसमें कॉल करता हूँ पॉइंट नंबर 4 में, इसको मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, मीथेन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि एक कार्बन एटम है और यहाँ पे है 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये है कार्बन वाला, अभी हम तो सिर्फ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कार्बन वाला एटम। तो ये कार्बन एटम जो है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझिए ओरिएंट हो रहा है ये कार्बन का। और फिर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यस हाइड्रोजन 1s1। कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल, 4 है। सो यहाँ पे ये 4 और ये sp3 वाले कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी इनके बीच में क्या होने वाला है, देयर शुड बी ओवरलैप दैट विल टेक प्लेस। सो अभी इनके बीच में ये है कार्बन वाला एटम और ये है यहाँ पे 4 यस हाइड्रोजन एटम्स। तो इनके बीच में अभी यहाँ पे ये ओवरलैप होगा। अभी मैं इसी जगह का इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से होता है इनके बीच में ओवरलैप। सो आपको अलग एक स्टेप बनाकर नीचे लिखना पड़ेगा, ओके, या फिर अगर आपने यहाँ पे ये ऐसा लिख तो भी चलता है। सो हियर ये है हाइड्रोजन का 1s, आई मीन हाइड्रोजन का यहाँ पे है s ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पे 4 होते हैं हाइड्रोजन्स। अभी यहाँ पे हो जाएगा ओवरलैप। सो आई विल राइट हियर दिस स्टेप। देखिए आई विल शो हियर राइट नाउ। तो ये आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन और ये है देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अभी इस ओवरलैप का नाम क्या होगा फिर, देखिए sp3 तो कार्बन का है ही और H का होगा S। यहाँ पे sp3s ओवरलैप हुआ और यहाँ पे भी मैं वही कहूंगा sp3s ओवरलैप यहाँ पे हुआ है, sp3s ओवरलैप एंड हियर आल्सो sp3s ओवरलैप। और ये सब के सब जो ओवरलैप होते हैं वो होते हैं अलोंग द एक्सिस, इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। So in this way now you can see carbon is present at the center and hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. There is the presence of 4 hydrogen atoms and I mean orbitals, they will overlap coaxially and there is the formation of 4 sigma bonds will take place. तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है,
सो इस तरीके से फिर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे यस मीथेन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ऑर्बिटल ओवरलैप में आपको लिखना है कि हियर 4 orbitals of 4 hydrogen atom, they will overlap coaxially with yes 4 sp3 hybrid orbital of carbon atom by sp3s overlap। sp3 पता है क्यों? क्योंकि ये है sp3 और s किसका होता है? s होता है हाइड्रोजन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं sp3s ओवरलैप। सो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा मीथेन मॉलिक्यूल का। ठीक है, भी लास्ट पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी चेक हियर, यहाँ पे स्पेस है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, कोई जगह है यहाँ पे अवेलेबल, सो आई कैन ड्रॉ इट हियर। या भी सर हो गया यहाँ पे। सो अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे मिलता हूँ पॉइंट नंबर 5 बॉन्ड एंगल एज वेल एज ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री, देखिए कार्बन होता है ना, कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर। समझिए यहाँ पे ये कार्बन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, कुछ इस तरीके से। The bond angle is present here 109 degrees and 28 minutes. So bond angle is here 109 degrees and 28 minutes. हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, रिमेंबर यहाँ पे ये जितने भी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। एंड दिस ज्योमेट्री इज नथिंग बट नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री इधर फॉर्म हो जाएगी। सो ये पूरा आपको इस तरीके से लिखना होता है थ्योरी पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल या फिर जितने भी होने चाहिए sp3 वाले मॉलिक्यूल्स, तो इनके लिए ये ज्योमेट्री होती है। नाउ इट ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल। देखिए कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेंटर में और 4 कॉर्नर्स पे टेट्राहेड्रॉन के यहाँ पे आ जाएंगे 4 hydrogen atoms 1 2 3 4, and I told you there is a presence of sp3s overlap and this overlap takes place along the axis। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे मतलब 4 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं they form along the axis, that's why we can say they are very strong bonds। on the other hand pi bond जो होते हैं they get formed lateral or sidewise way, so that is the reason pi bonds they are weaker as compared to the sigma bonds। okay, तो ये पूरा जो क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 जो है, इसमें आपको बस इतना ही लिखना है कि बॉन्ड एंगल कौन सा है और ज्योमेट्री कौन सा है, इतना यहाँ पे काफी हो जाएगा। डायग्राम निकालते वक्त ये आपको प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ पेंसिल ही निकालने हैं पेपर में, डोंट मेक यूज ऑफ द पेन। ओके, पेंसिल से निकालो, अच्छा लगेगा। ओके, and now note down these things properly in your notebooks। now you can see that geometry also tetrahedral।
I think for today's lecture we have to stop here. अभी हम यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर जो अगला वाला जो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट लेंगे. फिलहाल आपको मैंने पूरे तरह से समझाया है. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट. ठीक है, दिस टॉपिक इज टोटली न्यू फॉर यू बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इफ इट्स अंडरस्टूड प्रॉपरली. ठीक है, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं. अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट. टिल दैट द टाइम, please take care and stay at home and keep studying.